Hello students, today's topic is the journey of food or the process of digestion. This topic is a part of chapter 3 from tasting to digesting. First of all, let's have a look the names of those parts from which our food travels. First is mouth. This is the first place where the digestion of food starts. Then food pipe or esophagus. After that, the food reaches the stomach, then small intestine. After small intestine, large intestine, and at last, the waste goes out of the anus. So these are the parts from where our food travels. All these parts, when combined together, it forms our digestive system. Let's have a look to our digestive system. How does it look like? This is human digestive system. You can see the mouth, the food pipe, the stomach, the small intestine, large intestine, and anus here. Let's talk about mouth. Mouth is where the first step of the food digestion takes place. Teeth cut and grind the food into small pieces. Saliva in mouth helps in movement of food. Teeth, with the help of saliva, make a thin paste. क्या होता है माउथ में? सबसे पहले जब हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी अपने मुंह में लेते हैं, सबसे पहले उसे हम च्यू करते हैं. हमारे दांत उसमें हमारी मदद करते हैं. Our teeth cut it and grind it. वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, उसे ग्राइंड करता है. And the saliva in our mouth, जो स्पिट होता है हमारे माउथ में, जो सलाइवा होता है, वो मिक्स हो जाता है हमारे फूड के साथ and it makes a thin paste. Then it comes to food pipe. Let's talk about food pipe, or we can say after getting chewed in the mouth, the food travels from the food pipe or esophagus to the stomach. Food pipe is a pipe. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो एक वे है, एक रास्ता है, एक पाइप है जो माउथ से फूड को ले जाता है स्टमक तक. Now moving towards stomach. Passing through the food pipe, the food reaches the stomach. There are some juices, gastric juices or acid in the stomach that helps in the process of digestion by melting the food. स्टमक में जब फूड आता है तो वहां पर बहुत से जूसेस होते हैं या एसिड्स होते हैं जो हमारे फूड को मेल्ट करते हैं और इस तरह से वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. Now, the small intestine. From stomach, the food reaches into the small intestine. Most of the digestion happens in the small intestine. जैसा कि यहाँ लिखा गया है most of the digestion, सबसे ज़्यादा जो digestion होता है वो small intestine में होता है. That means it is the main part. Bile juice secreted by the liver helps in the process of absorbing nutrients and minerals from the food. Bile juice जो liver and even pancreas में बनता है वो help करता है absorb करने में सभी nutrients को जो हमारे food में है. Villi, finger-like structure in small intestine passes the nutrients to the blood. अब बाइल जूस ने हमारे फूड में से सारा न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए, बट वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचेंगे? यस, ब्लड उसे हमारी बॉडी तक पहुंचाएगा. और ब्लड तक उसे कौन पहुंचाएगा? विले. विले
एक फिंगर की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिंगर जितने लंबे नहीं बट इनका शेप फिंगर जैसा होता है। वो जो स्ट्रक्चर बने होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड तक पहुंचाते हैं। Now, our small intestine is very small. No, not in its length, but in its width. Our small intestine is 20 to 22 feet long. Can you believe it? It is small. The next is large intestine. When food from small intestine enters the large intestine, the water from food is absorbed there. अब जब हमारा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो जितना भी उसमें वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द डाइजेशन। यह डाइजेशन की फाइनल स्टेज होती है। फूड वेस्ट गोज आउट ऑफ द एनस, और लास्ट में जो भी वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ हम थोड़ा उनमें डिफरेंस देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज 6 meters or about 20 feet long. Large intestine is about 5 feet long. Small intestine, it absorbs the nutrients and minerals from the food. Large intestine absorbs water from the food. Small intestine is longer than the large intestine. Large intestine is wider than the small intestine. So these are the difference between small intestine and large intestine. अब हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम डाइजेशन की प्रोसेस को रिपीट देखेंगे दोबारा से। बॉडी में डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। फ्रॉम माउथ आवर डाइजेशन स्टार्ट्स। हम खाना खाते हैं, टीथ उसे च्यू करते हैं, सलाइवा की हेल्प से वो मिक्स होके फेरिंग्स तक पहुंचता है। फेरिंग्स क्या है? ये एक ट्यूब है जो कि फूड पाइप को विंड पाइप से अलग करती है। उसके बाद खाना एसोफेगस में पहुंचता है, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो इसे स्टमक तक लेकर जाता है। स्टमक में बहुत सारे जूसेस होते हैं जो खाने को मेल्ट करने में और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में स्मॉल नहीं है, वो विड्थ में स्मॉल है, लेंथ में वो 20 to 22 feet लॉन्ग है। वहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। Our food absorbs all the nutrients here. इसमें हमारी लिवर और पैंक्रियास हेल्प करते हैं। वो बाइल जूस बनाते हैं जो हेल्प करते हैं खाने में से सभी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। ये देखिए, सभी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी में आ गए हैं। फिर डाइजेशन अगर यहाँ पर हो गया है तो आगे क्या होता है? फिर खाना पहुंचता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पर खाने में जितना भी पानी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और खाने का जो वेस्ट बचता है उसे वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।